Hello everyone. Hi, how are you all? Hoping you all are fine. So today we are going to continue with mathematics. From the mathematics, what we have to finish is nothing but another topic, that is AP. That is arithmetic progressions. As soon as we continue, or as soon as we come to some level in this particular topic, which is very simple, we are even going to continue with science. So today itself I will be uploading another video of science, that is magnetism, the magnetic effect of electric current. So today we have to study both maths as well as science. Before that, let's understand what AP is. AP is basically almost for 7 to 8 mark weightage topic, and one of the simplest topic of your syllabus. Simplest, most simple topic you can consider of your syllabus. At the same time, AP had got questions as well as word problems, but as per the new syllabus, the word problem has been cancelled from the syllabus, from the curriculum itself. So word problems are not there. So again, the things have become easier. The previous knowledge what you need for before knowing the AP: linear equation and quadratic equation. You have to study these two before we start the AP topic. Fine? And that is already you have studied, isn't it? Let's start the AP. What is AP? It is arithmetic progression. Arithmetic progression. Okay. Let's see what does that mean. Imagine if I give you a few sequence of numbers like 5, 10, 15, 20, and dash 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 so on, or maybe 2, 4, 8, 16, and dash dash dash, then 7, 10, 13, 16, and so on, or maybe 1, 4, 9, 16, 25, and so on. If I give you some sequence in this manner, can you identify the next number of this sequence? Let's understand whether it is possible or no. 5, 10, 15, 20. Yes, of course, 25 is my next number. 2, 4, 8, 16. Let's understand the pattern. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. Yes, 16 2s are 32. 7, 10, 13, 16. Okay. 7 plus 3, 10. 10 plus 3, 13. 13 plus 3, 16. 16 plus 3, 19 is the next number. 1, 4. अरे ये कौन सा पैटर्न है? 1, 4, 9, 16, 25. Are these the squares of some number? Yes. 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 25 is 5 square, 6 square 36 would be my next number. These are called as a sequences. Okay, we call these all are nothing but sequences. Sequences are nothing but numbers written in a particular pattern, or the sequences where we can get the next terms of that particular sequence in the similar pattern. AP, that is arithmetic progression, is one of the part of sequence. We have another sequence, GP, geometric progression. Third one, harmonic progression. So there are three types of AP that what you will be studying in next 3 years as well. But this year we have only AP to study. We don't have GP right now, we don't have HP, but of course one should understand that it is a part of sequence. Let me tell you, this one is called as AP, and even this one is called as AP. This is not in AP and this is not in AP. We call this is not in AP. Let's analyze why. Why it is in AP and why the other one is not in AP. Check करते हैं. Just imagine if I take a difference between the first two numbers, is it 5? 10 minus 5 is 5. 15 minus 10 is 5 again. 20 minus 15 is 5 again. And 25 minus 20 is 5 again. Same thing I'll do for the next one. 4 minus 2 is 2.
8 minus 4 is 4. 16 minus 8 is 8. And 32 minus 16 is 16. In this case, 10 minus 3 is 10 minus 7 is 3. 30 minus 10 is 3. 16 minus 13 is 3. And 19 minus 16 is 3 again. Whereas last one is 3, 5, 7, 9, 11. So I hope you must have understood that by this time, that why I am calling this an AP. Why I call this as AP and why I call this as AP. These are in AP because the difference between the term is constant. Difference between the terms, you can check that it is 5, which is constant there, and 3, which is constant here. So don't you think that the difference between the terms is constant? We call that as in AP. Right? Is this clear? And other thing which are not in AP, we can clearly say that the difference is not constant. Therefore, it is not in AP. AP means what? Arithmetic progression. That means what I understand that we call the given terms or given sequences in AP if they have same common difference. Okay, same and common both are the same words. They have common difference. For an example, we'll take another examples like 4, 6, 8, 10 and so on. 12, 9, 6, 3 and so on. 5, 5, 5, 5 and so on. Root 2, root 8. Then we have root 18, root 32 and dash dash dash. Now just imagine, can you imagine, are these in AP? Let us verify that whether they are in AP or not. So if I go for next term minus the term 6 minus 4, if I take 6 minus 4, will it be equal to 2? Yes. 8 minus 6, 8 minus 6 is going to be equal to 2. Yes. 10 minus 8, yes. 10 minus 8 is also going to be equal to 2. So what do you think? Is it in AP? Yes, it is in AP. Next one, 9 minus 12. Okay, 9 minus 12. The difference is not 3 this time, it is minus 3. Still it is in AP. Don't worry. In case if the difference is constant, whether it is positive or whether it is negative. So you can check 9 minus 6 is again minus 3. And 3 minus 6 is again minus 3. So it is also considered to be in AP. Next one, the difference is 0, which is very clear. But yes, it is in AP. These are not possibly getting subtracted, like root 8 minus root 2. In the first go, you understand that it is not possible to subtract. But let me tell you, it is possible to subtract. How can we subtract it? Let's understand that. Before we start subtracting, let me convert it into mixed. This is root 2. Root 8 can be equal to 4 into 2, that is 2 root 2. 18 is 9 into 2 is 9, 3 root 2. And this is 16 into 2, so it is 4 root 2. Hope you got it. Root 32 is equals to 16 into 2. 16 will come out as 4 and 4 root 2 is the answer. So we converted into mixed. Now you tell me, is it possible to subtract 2 root 2 minus root 2? Is it root 2? Yes. 3 root 2 minus 2 root 2 is again root 2. And 4 root 2 minus 3 root 2 is again root 2. So isn't it we have same common difference in this case as well? Therefore, all these sequences are in AP. Clear? Got the point? Hope you understood it. Good.
So now you must have understood what exactly do you mean by AP, right? Now let's move ahead. In this topic, we will be learning some symbols, or we'll be using some alphabets as a symbol. For what we are going to use that, everything we will understand now. See, when it comes to an AP, any AP, like for an example 5, 7, 9, 11, this is called as a first term. And 7 minus 5, of course 9 minus 7 as well, of course 11 minus 9 as well, anything 7 minus 5 is called as a common difference. For any AP, these two informations are extremely important. So first term is called as A and common difference is called as D. Remember, first term is called as A and common difference in this particular topic we are going to call it as D. Okay? So in case if this particular question, if I ask you what is A is equals to 5, and what is D, it is equals to 7 minus 5, that is 2. Clear? Next one, the first term is of course called as A, the second term is called as A2. Of course first term can be called as A1, but as it is a very first term, we don't just consider that is as a A1, we just go on calling it as A only, right? So it is next term, the second term is called as A2, 7. Third term is called as A3, 9, and A4 is fourth term. So this 2, 3, 4 is nothing but considered as a number of term, and 7, 9, 11 is called as a term. Same way, if I go ahead, if I say 100th term, we call as A100. So in general, we call all these nothing but AN. AN is considered to be general term. Okay, as I said, A, D is very important. Similarly, the general term is also extremely important for an AP. How much important the general term is? Let's understand that. Imagine that if I say AN is equals to, if I say AN is equals to 5N plus 2, or just a minute, I'll take some easy example. Two n plus 3. Okay, 2n plus 3. We'll take this example. Okay, if I take this as a general term, how is this going to help me? What does it mean by? What is the significance of it? देखते हैं. Very interesting, बहुत interesting है. Basically इस particular term में पूरा AP छुपा हुआ है, पूरा AP कंप्लीट सीक्वेंस छुपी हुई है. कैसे? देखो, A1 इज इक्वल्स टू, अगर मुझे A1 चाहिए, A1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म, मतलब n इज इक्वल्स टू 1. तो 2 इंटू ब्रैकेट अगर मैंने n इज इक्वल्स टू 1 पुट किया तो आई विल बी गेटिंग फर्स्ट टर्म, दैट इज 5. ओके, A2 इज इक्वल्स टू, इसी टर्म में मैंने अगर n की जगह पे 2 पुट किया तो 2 2 4 प्लस 3 7, आई गेट द सेकेंड टर्म. सेम टर्म में मैंने अगर 3 पुट किया, सो 2 इंटू 3 प्लस 3, 3 2 6 प्लस 3 9, मुझे मिल गई थर्ड टर्म. सेम टर्म में मैंने अगर 4 पुट किया तो 2 इंटू 4 प्लस 3, तो 4 2 8 प्लस 3 11, आई गॉट द नेक्स्ट टर्म. आई होप यू गॉट इट कि ये जो AP है यहाँ पे मिल रहा है, बराबर है ना. तो इस इक्वेशन को वी कॉल एज अ जनरल टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर AP. So AN is equals to 2n plus 3 is general term of an AP.
एंड आपको पता चल गया ना कि इसमें पूरा का पूरा ए पी छुपा हुआ है। एंड अगर मुझे ये पता है, ए एन पता है, तो मैं कुछ भी फाइंड कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे 100th टर्म फाइंड करनी है, 100th, तो ए 100 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 100 प्लस 3, सो 203, है ना। देखो हम लोग अगर नॉर्मली जाते उसको काउंट करते 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 और 100 टर्म इज इट वुड हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम, लेकिन मैथ्स ने हमें क्या दिया है कि सिंपल सा वे दिया हुआ है। 100 छोड़ो, आप लोग 999th टर्म भी इजीली फाइंड कर सकते हो विद इन सेकेंड, इजंट इट। तो दिस बिकम्स वेरी वेरी व्हाट, सिंपल, easy and direct, right? So what I understand, let's see, in terms of AP, in AP difference is constant. First thing, first term is called as A, second term, that is common difference, is nothing but D, and general term of AP is nothing but called as AN, इसको हम लोग AN बोलते हैं, ठीक है। D कैसे फाइंड करते हैं? A2 माइनस A1, A2 मतलब क्या है, सेकेंड टर्म, A1 क्या है, फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1, A1 बोलो या A बोलो एक ही बात है। नॉट ओनली दैट, यू कैन गो फॉर A3 माइनस A2 एज वेल। तो D आप लोग कैसे भी फाइंड कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्लियर, गॉट इट। अभी हम, अगर मैंने आपको बताया कि A इज इक्वल टू 3 है एंड D इज इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब क्या बनता है, अभी मैं बताता हूँ। इसमें भी आपका पूरा का पूरा AP हिडन है, इन दिस एज वेल योर AP इज हिडन। देखो फर्स्ट टर्म क्या होगी, 3 होगी, मतलब 3 हो गया पहला वाला। सेकेंड वाला टर्म क्या हो गया, 3 प्लस 4। थर्ड टर्म क्या हो गया, इसमें 4 ऐड करो, 3 प्लस 4 प्लस 4। फोर्थ टर्म क्या हो गया, 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 एंड सो ऑन। दैट मीन्स अगर जो टर्म में मैंने D ऐड कर दिया तो आई एम गोइंग टू गेट द नेक्स्ट टर्म, बराबर है ना। तो 3 में 3 हो गया पहला वाला टर्म, A इज 3। A2 क्या हो गया, 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7। 3 प्लस 4 प्लस 4 मतलब 3 प्लस 8 11। 11 प्लस 4 करोगे तो भी चल जाएगा ना, ये तो 11 ही, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 4 19 एंड सो ऑन। सो इसका मतलब क्या, अगर मुझे A दिया है, अगर मुझे D दिया है, तो मुझे बेसिकली पूरा AP दिया है, बराबर है ना। सिंपल सी बात, एकदम सिंपल सी बात। मतलब क्या बनेगा यहाँ पे देखो, A प्लस D, A प्लस 2D, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 बार D ऐड हो गया, A प्लस 3D, दीज आर नथिंग बट द टर्म्स ऑफ AP। ये जो है ये टर्म्स ऑफ AP होते हैं, कोई भी AP हो, अगर A है एंड D है तो यू कैन ईजिली फाइंड दैट AP बाय दिस वे। लेकिन आपको समझ में आ गया कि देखो A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 कम है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 कम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 कम है। तो इमेजिन करो A99 क्या होना चाहिए, A प्लस 98D। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे 1 कम है। A1000 क्या होना चाहिए, A प्लस 1 कम D, 1000 से 1 कम मतलब 999D, राइट। तो AN क्या होना चाहिए, AN मतलब हम लोग कोई भी एक जनरल टर्म देख रहे हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए A प्लस N माइनस 1 इंटू D, है ना, ऐसे होना चाहिए ना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग जनरल टर्म ऑफ एन AP। ये है आपका वेरी फर्स्ट फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, N इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये जो है यहाँ से एक माइनस करके यहाँ पे लिखा, दैट्स इट, N माइनस 1 इंटू D। क्या कहा आपको, आपने समझा नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे तो और ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी देखो मैंने क्या बोला था,
ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज नथिंग बट योर फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म ऑफ एमनीपी। मतलब क्या है इसका, देखते हैं। ए एन जनरल टर्म आपको पता ही है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। एंड डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब अगर मैंने आपको एक एपी दिया, जैसे कि ऐसा एपी है 7 10 13 16 एंड सो ऑन, और आपको मैंने बोला कि फाइंड 78th टर्म, तो क्या आप ऐसे ऐड करते जाओगे 78 टर्म आने तक एंड वो लिखोगे? दैट वुड बी डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज एरर भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन वाला। क्या होता है ए एन? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन मतलब ए 78, क्योंकि मुझे 78 टर्म फाइंड करना है, तो एन इज इक्वल टू 78 है, राइट? ए क्या है? ए मतलब क्या, फर्स्ट टर्म 7, एन इससे एक कम, बराबर ना, एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा 77, राइट या नहीं? समझ में आ गया? 78 माइनस वन 77। पिछले वाले सेशन में, पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा था ना, जहाँ पे ये 1000 आता है तो यहाँ पे 919 एक कम आता है, 99 आता है, यहाँ पे 98 आता है, तो 78 है तो वहाँ पे क्या आएगा 77। और हाँ, आप लोग एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो 78 माइनस 177 होगा ही ना, इंटू डी। डी क्या होता है, फॉर्मूला हमने देखा था, ये देखो A2 माइनस A1। तो डी क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 क्या है, 10 माइनस 7, कितना आ गया 3, डी इज इक्वल्स टू 3। तो 7 प्लस 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21 प्लस 2 23 एंड 238। देखो समझ में आ गया जनरल टर्म का कमाल, इस फॉर्मूला का कमाल समझ में आ गया। कोई भी टर्म देख लो, आप लोग इमेजिन करो कि मैंने आपको पूछा कि उसी टर्म के लिए फाइंड 104th टर्म, कोई भी टर्म 1000 टर्म हो चले जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो मुझे A104 फाइंड करना है। इट विल बी A प्लस 103D, एक कम, राइट, एक कम। A कितना है 7, 103 इंटू डी कितना है, डी हमने यहाँ पे देखा, वो तो कॉमन ही रहेगा 3, तो 7 प्लस 3 3 ज़ा 9 एंड 10 3 ज़ा 30, तो ये हो जाएगा 316। ये रहा मेरा नंबर जो 104th टर्म होगा, है ना? मस्त, मज़ेदार, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है एंड बहुत डायरेक्ट है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको कुछ कंप्लीट करना है। I'll just show you, आई एम सेंडिंग अ PDF टू यू। उस PDF में आपको करना क्या है ये मैं दिखा देता हूँ, सिखा भी देता हूँ, नो प्रॉब्लम। फाइंड नेक्स्ट टू टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, ये सीक्वेंस देखना है और नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड करना है। इसको एक एक्टिविटी की तरह करो, ठीक है? जैसे आप चाहे, AP नहीं है ये, दिस इज नॉट अबाउट AP, इट इज़ अबाउट व्हाट, नोइंग द सीक्वेंस। तो आपको वो पैटर्न देख के उसके आगे वाले नंबर्स लिखने हैं, ओके? ट्राई करो, जितना हो सके उतना ट्राई करो। राइट, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द गिवन AP, 5 टर्म्स लिखने हैं। मतलब क्या करना है आपको, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। एन इज गिवन, राइट, तो A1 मुझे फाइंड करना है। क्या होगा A1, 2 इंटू 1 प्लस 5, आंसर आ गया। A2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 5। A3 is equals to 2 into 3 plus 5 and so on. You will find the 5 terms of AP or 5 terms of the sequence, right? अभी आप बोलोगे इसको क्या कैसे करेंगे, इसको सेकेंड वाले को। A1 is equals to, देखो n स्क्वायर है मतलब 1 स्क्वायर, A2 will be equal to 2 स्क्वायर, A3 will be equal to 3 स्क्वायर। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, राइट? इसको कैसे करेंगे, n स्क्वायर माइनस 1, तो A1 is equals to 1 स्क्वायर माइनस 1, 0 होगा ये। A2 will be equal to 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 होगा, एंड सो ऑन। 5 टर्म तो फाइंड करने हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, isn't it?
A1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2/1, 2 हो गया। A2 इज इक्वल टू 2/2, 1 हो गया। A3 विल बी इक्वल टू 3/2, वही रह गया। बस दैट्स इट, और कुछ है नहीं, बराबर ना, सिंपल है। तो ये आप लोग कंप्लीट कर सकते हो इजीली। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको। है इजी लेकिन थोड़ा सा वियर्ड है। देखो कितना मैथमेटिक्स आपको समझ में आता है, देखते हैं अभी। A1 इज इक्वल टू -1/1, क्या होगा, -1। A2 इज इक्वल टू -1/2, इवन पावर ऑफ नेगेटिव मेक्स इट पॉजिटिव। A3 इज इक्वल टू -1/3, और पावर कीप्स इट नेगेटिव। A4 इज इक्वल टू -1/4, पॉजिटिव। एंड A5 इज इक्वल टू -1/5, क्या होगा, -1। इसको समझने के लिए मैंने लिया था ये क्वेश्चन। चलो ठीक है। A1 इज इक्वल टू 2/1, A2 इज इक्वल टू 2/2, A3 इज इक्वल टू 2/3, A4 इज इक्वल टू 2/4। कितना सिंपल है देखो, दैट्स इट, सो वेरी सिंपल। कैन वी डू इट? आई एम श्योर यू विल। नेक्स्ट वन, फाइंड डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। आपको इसमें से डिफरेंस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग डिफरेंस? सिंपली A2 - A1 करो, हो गया। तो A2 - A1, D इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो A2 - A1, पता है ना ये। तो 11 - 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 11 - 8, मैं आंसर बोल देता हूँ, सॉरी 11 - 8, 3 हो गया। दैट्स इट, डिफरेंस हो गया। सब फाइंड करने की जरूरत नहीं, बस A2 - A1 करो, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट वन, D इज इक्वल टू A2 - A1। ऑलवेज रिमेंबर, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी A1 - A2 नहीं करना है, A2 - A1, नहीं तो बहुत बड़ी गलती होगी। तो 1 - 6 तो निगेटिव भी आएगा तो चलेगा, लेकिन कभी भी A1 - A2 नहीं करना है, A2 - A1 करना है। मैं पर्पसली वो फॉर्मूला लिख के देता हूँ। चलो ठीक है, ये रहा। थर्ड में देखो, D इज इक्वल टू A2 - A1, मतलब दिस माइनस A प्लस 2D माइनस A गेट कैंसिल, 2D इज द डिफरेंस, राइट। अब ये वेयर लग रहा है 2D, लेकिन है तो सही। देन डिफरेंस इज इक्वल टू A2 - A1, कितना होगा, P - 10 माइनस ऑफ P - 7। अभी आपको समझ में आया कि देखो, माइनस ऑफ जब आता है तब वो ब्रैकेट हो गया। तो P - 10 माइनस P + 7, P गेट कैंसिल एंड आंसर इज -3। देख लो, राइट। ये क्वेश्चन आपको करना है, मैंने अभी भी बताया था इन द सेशन में, ठीक है। कंप्लीट करो तो यू कैन इजीली फाइंड डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ओके, वेरीफाई फॉर द AP, दैट मीन्स यू हैव टू चेक वेदर दे आर इन AP। कैसे चेक करते हैं? A2 - A1 फाइंड करो, A3 - A2 फाइंड करो, A4 - A3 फाइंड करो। डिफरेंस कॉमन आया तो वो AP में है, नहीं आया नहीं है। ओके, तो चेक कर लो, और यहाँ पे आपका AP टॉपिक एक्चुअली शुरू हो जाता है। तो फाइंड AP, ओके, फाइंड AP इन द फॉलोइंग। इस सीक्वेंस में आपको AP फाइंड करना है। तो AP फाइंड करना है मतलब क्या करना है, सिंपली बहुत सिंपल है, अभी अभी हमने किया। AP फाइंड करना मतलब क्या है, 3 टर्म्स फाइंड करना है और कुछ नहीं। AP फाइंड करना मतलब क्या, 3 टर्म्स फाइंड करना है। तो मेरे AP क्या है, AN इज इक्वल टू N + 5, तो ये जनरल टर्म है। 3 या 4 टर्म फाइंड करना है, दैट्स इट। तो A1 इज इक्वल टू 1 + 5, ये हो गया 6। A2 इज इक्वल टू 2 + 5, 7। A3 इज इक्वल टू 3 + 5, 8। A4 इज इक्वल टू 4 + 5, 9। Therefore AP is 6, 7, 8, 9 and dash dash। हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें, isn't it? नेक्स्ट वन देखते हैं। A1 इज इक्वल टू 1 + 1/2 विच इज़ 3/2। A2 इज इक्वल टू 2 + 2/2 1/2 सॉरी 2 + 1/2 विच इज़ 5/2। A3 इज इक्वल टू 3 + 1/2 विच इज़ 7/2। A4 इज इक्वल टू 4 + 1/2 विच इज़ 9/2। तो therefore AP is 3/2, 5/2, 7/2, 9/2 and dash dash। ऐसे लिखते हैं AP, दैट्स इट। समझ में आया? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ओके, पर्पसली मैं ये क्वेश्चन करवा के ले रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है बाद में ये बेस ही नहीं समझ में आता।
ओके, एंड देन हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग से समझाना पड़ता है कि डी क्या होता है, एपी क्या होता है, एपी कैसे निकालते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। अभी इतना समझ में आ गया तो आपको इसके बाद क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन देखो, फाइंड एपी इफ ए इज गिवन एंड डी इज गिवन। हमारा एपी कैसे होता है, 4 में डी ऐड कर दो, अभी वो साइन के साथ ऐड करो, मतलब 4 - 3 1 हो जाएगा, 1 - 3 -2 हो जाएगा, -2 - 3 -5 हो जाएगा, -5 - 3 -8 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये हो गया आपका एपी। अभी आप बोलोगे कैसे, देखो 8 2 -7 करके देखो, -3 आ रहा है क्या, आ रहा है। बस फर्स्ट टर्म में डी ऐड करना है। देखो अभी इमेजिन करो, इसमें फर्स्ट टर्म में -1/1.5, उसमें -0.5 ऐड कर दो, -2। इसमें अगर -0.5 ऐड कर दिया तो माइनस क्या हो जाएगा, 2.5 -3 एंड सो ऑन। जैसा है वैसे उसमें ऐड करना है, डी प्रीवियस टर्म में डी ऐड करते जाओ, यू गेट योर आंसर, विद साइन ऐड करना है। समझ में आ गया, क्लियर। तो आप पहले 5 क्वेश्चन तो आराम से कंप्लीट कर सकते हो। 6th वन मैं आपको एक विदाउट गिविंग हिंट आई एम गिविंग यू टू सॉल्व। तो लेट अस सी हाउ मेनी यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन ये है आपका आज का DIY। तो आपको करना क्या है, डू इट योरसेल्फ। एंड मैंने पूछा है कॉमन डिफरेंस, मतलब क्या पूछा है, डी मुझे कमेंट करो। देखते हैं कितने लोग इसका कमेंट करके आंसर बताते हैं। मुझे पता है आज गणपति विसर्जन है, आज ये इसका आंसर होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन इस डी क्वेश्चन का आंसर मुझे कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 6, आई एम सेंडिंग यू द PDF ऑफ दिस AP टॉपिक टुडे इन शॉर्ट। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे। AP आज हमने रिवाइज किया, आज हमने शुरू किया, इंट्रोड्यूस किया, एंड 6 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए। ऑल द 6 क्वेश्चन इवन आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो।